بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں احسان ناز پروگرام سیاست بخیر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت قانون سازی قومی اسمبلی میں ڈے ٹو ڈے کی جا رہی ہے۔ آج بھی قومی اسمبلی میں کچھ بل پاس ہوں گے جن میں اہم بل جو ہے وہ 25 چیزوں کی بات ہے، ان کی منظوری دی جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو نمبر 1 ایئر لائنز کبھی ہوا کرتی تھی PIA، اس کو فروخت کرنے کا معاملہ پھر لٹک گیا ہے، کیونکہ جس بھی ایک شخصیت نے 10 ارب روپے قیمت لگائی تھی، وہ علیم خان نے اس کو واپس کر دیا کہ 10 ارب کم ہے۔ اب نئے کھلاڑی آ گئے، میں محمد نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحب اور علی امین گنڈا پور، جو یہ PIA خریدنا چاہتے ہیں۔ اور میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ مریم نواز صاحب نے تو مجھے کہا ہے کہ یہ خرید کے اس کو نئی ایئر لائن بنائیں، اس میں نئے جہاز، نئی ہر چیز کا۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان کو یہ جو زرداری اور شریف ہیں ویسے تو کچھ نہیں دے سکے، اب وہ جاتے ہوئے جو ہوتی ہے نا چور کی لنگوٹی، وہ بھی کھینچنے گئی PIA کو اپنے نام کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیے اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے۔ لیکن جو علی امین گنڈا پور نے 100 ارب روپے کی آفر دی ہے، اس کو میٹ کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا، کہیں 10 ارب، کہیں 11 ارب اور کہیں 100 ارب۔ لیکن اس پہ جو مرکز کے حکمران بڑے تل ملا رہے ہیں کہ آپ کے خیبر پختونخوا میں بچے تو اسکولوں میں نہیں جا رہے، تنخواہیں دینے کے لیے آپ کو پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ 100 ارب روپیہ PIA کو کیسے دے سکتے ہیں؟ تو میں گزارش کرتا ہوں پنجاب کے حکمرانوں سے کہ آپ نے یہ پورے پنجاب میں بچوں کو دودھ پلانے کے لیے فنڈز رکھے ہیں، وہ بھی اربوں میں ہیں۔ اس طرح ڈے ٹو ڈے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو افتتاح کرتی ہیں، فیتے کاٹتی ہیں مختلف کارڈوں کا، اس میں بھی وہ اربوں روپے اناؤنس کرتی ہیں، لیکن نہ ان کی جولی میں کچھ ہے نہ کوئی خزانے میں ہے۔ کیونکہ پہلے یہ ہم یہی سنتے تھے خزانہ خالی ہو گیا، خزانہ خالی، اب پتہ نہیں یک دم پنجاب کا خزانہ کہاں سے بھر گیا ہے، اور خیبر پختونخوا کا ابھی بھی کم ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ ہم نے اربوں روپے مرکز سے یہ بجلی کی ریئلٹی میں لینے، ان کو نہیں دیے جا رہے۔ اس طرح سندھ ہے، اس طرح بلوچستان ہے، وہاں کے بھی لوگ میڈیسن کو ترس رہے ہیں، کھانے کو ترس رہے ہیں، بھوک کے مارے ہیں، لیکن یہ عللے تللے والے لوگ جو ہیں PIA کو خرید کر بھی جشن منانا چاہتے ہیں اور اس پہ بڑے ہلے گلے ہو رہے ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب 9 نومبر کو جلسہ پشاور کے بجائے سوابی میں کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ تو ہم اپنے تجزیہ نگاروں سے یہ بھی پوچھیں گے، یہ پشاور کی بجائے سوابی، اور سوابی تو ان کا اپنا ایک ضلع ہے، ان کا اپنا ایک حصہ ہے خیبر پختونخوا کا، وہاں جلسہ کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے لاہور میں، ملتان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں اور مختلف ان جگہوں پر جہاں PTI کی حکومت نہیں ہے۔ لیکن یہاں تک میرے علم میں ہے، کیونکہ پنجاب کی حکومت نے PTI کے لوگوں کو ڈرا دیا ہے کہ آپ پنجاب میں نہ آئیں، کیونکہ وہ جس طریقے سے برا حال کرتے ہیں اور جس طریقے سے لوگوں کو پکڑ کر چادر اور چار دیواری کا بھی خیال نہیں کرتے، خواتین پر بھی تشدد کیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سب سے پہلے اپنی عزت ہے، سیاست میں بعد میں ہو جائے گی، لیکن ان کی عزت ہے کہ ہم لاہور بھی آئیں گے، ہم اسلام آباد بھی آئیں گے۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب، اور انہوں نے کہا ہم کفن باندھ کے آئیں گے، اور گھر والوں کو انہوں نے میسج دیا ہے کہ اگر ہم واپس نہ آئیں تو ہمارا جنازہ پڑھا دیں۔ تو یہ آخری بار ہے، کیونکہ سومناتھ پہ 17 حملے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارا تو بھی یہ تیسرا یا چوتھا حملہ ہے، ہم 17 دفعہ بھی حملہ کریں گے۔ اور راستہ یہی تھا، جتنے بھی حملے ہوئے نا پاکستان انڈیا پر، وہ اسی راستے سے ہوئے ہیں، اور سومناتھ کا بھی جو حملہ کیا وہ بھی اسی راستے میں تھا۔ تو باقی یہ جو مختلف معاملات پاکستان میں چل رہے ہیں، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، حکمران کہہ رہے ہیں سرمایہ کاری بہت آ رہی ہے،
जब को पूछता है कि आप मियाँ नवाज शरीफ साहब आप सरमाया पाकिस्तान नहीं लाते, जरदारी साहब आप सरमाया पाकिस्तान नहीं लाते, तो उनको हंस के दिखा दिया जाता है, तो फिर हंस के वो भी कहते हैं हम सरमाया करें क्यों करें। ये सारी रूदाद है। तो इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बहुत ही अहमियत के हामिल पैनल को यहाँ दावत दी है। उनमें जनाब नहायत ही अहमियत के हामिल तजिया नगार जो कि साबिक़ ब्यूरोक्रेट भी हैं और उन्होंने कई हुकूमतें देखी हैं उल्टती पलटती, और अब वो साल से सियासी प्रोग्राम शो कर रहे हैं जिनमें कभी कभार मुझे भी मदऊ करते हैं। आज उनकी मेहरबानी कि वो हमें मिलने के लिए सलाम दुआ लेने के लिए आ गए, तो मैं इनसे उनसे हुआ कि तो मेरी मुराद है जनाब इकबाल शाह साहब। तो मैं इकबाल शाह साहब अपने प्रोग्राम में आपको बहुत मेहरबानी। अच्छा, इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर की मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा, जो हमेशा हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देती है। मोहतरमा ज़ेबा नाज़ साहबा, मैं आपको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। तीसरी हमारी मेहमान है डॉक्टर मारिया यूसुफ, जिनका तल्लक कराची से है। ये पीपल्स पार्टी की नहायत ही होनहार किस्म की दावेदार हैं और पीपल पार्टी को बड़ा डिफेंड करती हैं, और इन्होंने ये आज मेहरबानी की है। पहले हमारे साथ ये लाइन पे होती थी, आज ये खुद स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। मैं आपको डॉक्टर मारिया खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। तो मैं इब्तिदा करता हूँ जनाब शायद इकबाल साहब, तो ये जितनी मैंने बातें इंडिया में की हैं आपकी बड़ी गहरी नज़र है, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ये 9 नवंबर का जलसा स्वाबी में कर रही है, इसके अगराज़ व मक़ासद क्या हैं और क्या ये वहाँ भी जलसा अच्छा कर पाएंगे? इसाना साहब बहुत शुक्रिया, आपने इंट्रो में ना 3 कह सकते हैं कि अहम मौजू के ऊपर बात की है। जी जी। एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जो असेंबली में आज पेश किया जा रहा है। आज 2:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, 4 बजे इजलास है, 6 बजे सेनेट है। आप देखें लेकिन उसमें मियाँ नवाज शरीफ इजाज़त शामिल नहीं हो रहे, आपकी इत्तला के लिए। आप ये देख रहे हैं कि मसलन इस किस्म की सूरत हाल में जब अब वो तो बात आगे जाएगी, क्योंकि आप देखें कि अगर 160 मेंबर्स ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि अमेरिका हमारे जो है सॉवरेंटी में या हमारी मुदाखलत कर रहा है, तो उसमें भी मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब, चौधरी, ये सारे कोई नहीं है, ये अपने साइन नहीं करते, ये आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी आज पेश किया जा रहा है। उसमें है क्या? ठीक, उसमें जजों की तादाद है और प्राइवेट यानी सिविलियन का ट्रायल जो है ना वो भी इसमें आने जा रहा है कि फौजी अदालतों में होगा। इसके पस मंज़र में आप देखेंगे इस वक्त पाकिस्तान में है कौन जिनकी गैर मौजूदगी में ये पास होगा, क्योंकि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जजों की तादाद बढ़ाने की इजाज़त देता है पार्लियामेंट को, लेकिन सिविलियन का ट्रायल जो है वो आर्टिकल जो है इंसदाद दहशतगर्द 2017 उसमें अमेंडमेंट आ रही है। उसमें ये होगा कि मज़ीद यानी अगर किसी आदमी पर शक है और वैसे सरगर्मियों में मतलूब है, वो 3 महीने के लिए उसे आप बगैर वारंट के रख सकते हैं, और उस जब 3 महीने के बाद वो आएगा और वो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं है, तो फिर उसकी जो ये फैमिली है आपको पता है क्या उसके साथ होगा। लेकिन अगर 3 महीने के बाद मुतलका एजेंसी पकड़ने के बाद उसके खिलाफ कुछ नहीं साबित कर सकती, तो ये एजेंसी 100% उस पर साबित करेगी, क्योंकि फिर तो बेइज्जती हो जाएगी कि भाई अगर 3 महीने के बाद कुछ नहीं निकला तो फिर अवाम तो सवाल करेंगे कि फिर भी 3 महीने का आदमी की आज़ादी आपने सल्ब की है। ये बड़ा खौफनाक अमेंडमेंट हो रही है जिसका शिकार ये जो करने जा रहे हैं ये होंगे ही होंगे। अच्छा, वो इसलिए होंगे क्योंकि इस वक्त इनके ऊपर शायद को बहुत बड़ा दबाव है। आप देखें आईनी तरमीम अहम तरीन है। आज तक मुझे बताइए कि ये जो PDM 3 आई है हुकूमत, जिसको लोग फार्म 47 की कहते हैं, इसके दौर में कोई किसी किस्म की अवामी मफाद के लिए कोई कानून साजी हुई हो ही नहीं सकती, सिवाय इसके कि एक पॉपुलर पार्टी या उसका लीडर जिसका नाम भी है अदालत कहती है ले लें, अदालत के पल्ले कोई चीज़ नहीं है, वो कहते बानी। अब बानी तो एक ही बंदा जिसका नाम इमरान खान है, आप उसका नाम जटला दें, कुछ रख लें, बल्लेबाज रख लें, 92 का चैंपियन रख लें, शौकत खानम का उसको बना दें कि जी वो फाउंडर है उनका। तो वजह यह है कि ये ऐसा मुल्क है
جس کے مقابلے میں انڈیا میں اب وہ ہم ریلیونٹ اس کے لیے ہو چکے ہیں۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ اس وقت آئینی ترمیم یا ایکٹ آف پارلیمنٹ میں اتنی تیزی کیوں ہے، اور اس کے باوجود آصف علی زرداری صاحب مبینہ طور پر ایک گھٹنے کو چوٹ لگوا کے 2 مہینے کے لیے بیٹھ گئے ہیں، وہ بھی پتہ چلے گا کہ بھی جھوٹ ہوگا، 100% جھوٹ ہوگا۔ میری جہاز سے اترتے ہوئے دوسرا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جلد پر چربی چڑھ گئی ہے، وہ فرانس میں ہیں۔ فرانس چلے گا، ٹھیک ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے ہیں، پھر جا رہے ہیں 2-3 دن میں۔ میاں نواز شریف صاحب امریکہ کے، وجہ اور امریکہ مریم نواز میں 6 کو جا رہے ہیں، ایسا ہی یہ بھی ایڈ کر رہے ہیں۔ ایڈ تو کر لیں، تو آپ لوگ ایڈ کر لیں، میں نے کر لیا۔ وجہ یہ کہ پیچھے کیا ہے، ان کے غیر موجودگی میں ہی یہ آئینی ترمیم ہوگی، اور جیسے بھی ہوگی ہر کر بھائی رخ وہ آئینی ترمیم کریں گے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو فضل الرحمان کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب آپ نے دیکھا کہ اس دن میں ان کے پاس ممبر مناسب موجود تھے، فضل الرحمان کے علاوہ بھی موجود تھے۔ جس ملک میں حق حکمرانی عوام کا نہ ہو، عوام کے منتخب نمائندے کو اپنے ضمیر کے مطابق اپنی پارٹی کے مطابق ووٹ دینے کا حق نہ ہو، خود اس اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ نہ دے سکے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ بھی یہاں نافذ ہو، اس کے باوجود اس کو ڈیسیڈ نہ کیا جا سکے، اس کی مثال پچھلی دور میں نور عالم اور راجہ ریاض کے آپ کے سامنے ہے۔ یہ نا کوئی ملک ایسے آٹوں پر لگا ہوا ہے، اس میں آئین کے متعلق اگر کوئی آدمی کو خوش فہمی ہے تو وہ ظاہر ہے اس خوش فہمی کو دور کرے۔ یہاں آئین سازی، قانون سازی کوئی بھی کسی ادارے کی ریفارم کی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ یہ اگر ہوگا تو کرنے والے ہمیشہ اس کی زیادہ میں آئے۔ ذوالفقار بھٹو صاحب کا کیس آپ کو یاد یعنی ہوگا، اسی کنویں میں گریں گے، وہ سارے گرے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جتنے آرمی چیف آئے اور میاں صاحب نے لگائے، سب نے ان کو کیا۔ ذوالفقار بھٹو صاحب جب انہوں نے ولی خان پر غداری کا مقدمہ چلایا حیدرآباد جیل میں، تو انہوں نے باہر کے ملک سے ایک وکیل منگوایا، برطانیہ سے۔ تو بھٹو صاحب نے فوراً ترمیم کی کہ یہاں کوئی آدمی وہ آدمی پیش ہو سکتا ہے کسی ملک کا جس کی 2 سال یہاں پاکستان پریکٹس ہو۔ اچھا، اور پھر جب سزائے موت کی ہیئرنگ ہو رہی تھی مولوی مشتاق کے سامنے، تو محترمہ نصرت بھٹو صاحب نے انگلینڈ سے رمزے کلارک جو اٹارنی جنرل تھا، وہ بہت بڑا قانون دان تھا، اس کو بلایا۔ تو سامنے مولوی مشتاق نے کہا کہ ذوالفقار بھٹو صاحب تو یہ کیسے تو قانون تھے آپ نے بنایا ہوا ہے، ہاں اچھا ہاں، ایز یو سو سو شیل یو ریپ۔ تو پھر آپ نے دیکھا جو ہوا، وہ پیش نہیں ہو سکا، قانون آپ قانون بنایا نا۔ جس نے بھی کوئی کھودا ہے گھڑا ہی تو پروانے کہاوت ہے۔ اب آتے ہیں کہ آپ نے پی آئی اے کی بات کی ہے، یا تو اگلی دفعہ کر لیں گے وقفے کے بعد۔ نہیں آپ کمپلیٹ کریں، آپ تو پی آئی اے کا ہیرو ہیں ہمارے ہیرو۔ آپ دیکھیں لاہور میں اگر کوئی برانڈ صرف چکن فرائیڈ کا ہے، یا کوئی دکان چل رہی ہے لبرٹی میں، تو اس کا جو ٹریڈ مارک ہے نا وہ بھی 50-60 ارب روپے کا ہوتا ہے۔ صحیح بات۔ باقی تو ایسٹ کو چھوڑ دیں، نام بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ نام تو آپ کا کاپی رائٹ ہوتے ہیں، وہ کاپی رائٹ بہت مہنگا بکتا ہے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے چینل 10-10 ارب روپے کے بک رہے، اس کے جو بڑے چینل ہیں ان کا نام اگر لینا چاہے 10 ارب کا نام آپ کو نہیں دیں گے۔ مجھے بتائیے نام دیں گے جیو یا ایئر وائی؟ کبھی نہیں دیں گے۔ رہ گئی بات کہ اگر آپ نے یہ کہا ہے کہ جی کے پی کے میں تعلیم نہیں ہے، فلان نہیں ہے، تو تعلیم کہاں ہے ہی نہیں چاروں صوبوں میں، کدھر ہے تعلیم؟ تانے ایک دوسرے کو۔ تعلیم جو ہے وہ تو ہمارا جو ہے وہ سبجیکٹ ہی نہیں ہے، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے۔ قوم کو تو ہم نے رکھنا ہے ان پڑھ۔ اب بلوچستان میں تعلیم دے کے ان لوگوں کو آپ نے انٹرنیٹ کا پر دکھانا ہے کہ ساری دنیا یہ کر رہی ہے، کیا سندھ میں آپ نے یہ دکھانا ہے؟ کیسے کیوں دکھانا ہے؟ جو لوگ مالک ہیں، بلکہ اس ملک کو باقاعدہ طور پر اب جس طرح افغانستان میں وہاں وار لارڈز ہوتے تھے، کسی آدمی نے 200 بندہ رکھا ہوا لڑائی کے لیے، کسی نے 400، اسی تناسب سے وہ پتہ لیتے تھے۔ پاکستان میں بھی باقاعدہ یہ جو معاشی، اس کو آپ کیا وار لارڈز کہہ سکتے ہیں، انہوں نے ملک کو بانٹ لیا ہے۔ ٹیکسٹائل کسی کے پاس ہے، شوگر کسی کے پاس ہے، ریئل اسٹیٹ کسی کے پاس ہے، میڈیا کسی کے پاس ہے، اچھا، اور بینک کسی کے پاس ہے، آپ دیکھ لیں آئی پی پی کسی کے پاس ہے۔ بلکہ میں تو ایک لائٹر موڈ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ صبح میں سوچ رہا تھا کہ یار پاکستانی قوم جو ہے نا،
इनमें चंद लोग जो हैं, जो ऐसे हमारे और आपकी तरह, उनको तो डूब मरना चाहिए, जो इन पर ताने करते हैं मियां नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, जरदारी के ऊपर। वही तो इतने नेक आदमी लोग हैं, इन्होंने इतनी मेहनत मशक्कत करके जब इनको ताने देते हैं कि यहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते, तो फिर उन्होंने करने के लिए कहते, फिर अब करने नहीं देते। उन्होंने कितने साल लगाए पीए को तबाह करने के लिए, कितने साल लगाए उन्होंने स्टील मिल को तबाह इसका करने। कल मियां नवाज शरीफ इसलिए साहब ने बरमला ये कहा है कि हमने इसको तबाह नहीं, आप देखो उनका शुक्रिया बड़ी अदा नहीं बड़ा- करते बड़ा ना। घेरा उनका। आप शुक्रिया अदा नहीं करते। हाँ। अब फिर उन्होंने कहा है कि चूंकि ये खत्म हो गए, हम खरीद लेते हैं, तो इसलिए अगर वो खरीद रहे हैं और बिल्कुल औने पौने में खरीद रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि ये बकायदा उनको उनसे तो पैसे ही नहीं लेने चाहिए। वो वजह यह है कि क्या बात है आपकी। उन लोगों को ये दे दें ताकि उसे अपने वधारे चला रहे हैं ना, तो ये तो आप क्रेडिट दें ना कि जरदारी साहब 18 मिलें चला रहे हैं, वो 999 यानी यूएई में चला रहे हैं, यानी हाँ हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। वो जो 29 किलोमीटर मलक रियाज के साथ मिलकर उन्होंने जंगल बियाबान को शहर गुलजार बना दी, खरबों रुपया कमाए हैं। सही बात। जरदारी साहब का कोई नहीं निकला, सारे माल कोई नहीं ले सका, स्विट्जरलैंड के बैंकों में कोई नहीं ले सका, कोई नहीं ले सका। तो अगर वो नेक लोग इसको लेना चाहते हैं तो उनको दे देने चाहिए, मेरा तो ये ख्याल। ताकि ज़ेबना साहब आप ये बताएं कि ये जो 9 नवंबर को आप जलसा करने जा रही हैं जी। स्वाबी में, जी। स्वाबी तो आपका सूबा है, आपकी वहाँ हुकूमत है, तो वहाँ आपको फायदा क्या करने का? आप लाहौर में करें, कराची में करें, कोयटा में करें, अपने इस्लामाबाद में करें, मुझे ये समझ नहीं आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 9 नवंबर को पाकिस्तान स्वाबी में जलसा करने जा रहे हैं हम इंशाअल्लाह ताला। इस जलसे से कबल ही मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि मैं ये पाकिस्तान की आज तक जितने भी जलसे हुए हैं उनमें से कामयाब तरीन ये जलसा होगा। और मैं इस जलसे में आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, स्वाबी, मर्दान, पेशावर और जितने भी पाकिस्तान के इलाकों के लोग ज्यादा शामिल होंगे। बाकी सूबों में भी लोग जाएंगे लेकिन इतने नहीं जितने की उनकी नहीं, वो तादाद। मरियम नवाज ने आपको बंदोबस्त किया नहीं? नहीं, वो बंदोबस्त में नहीं आने वाले। जो इमरान खान का सिपाही है, जो पंजाब हुकूमत ने, आपको पता है खान साहब के इस सिलसिले में पहले से ही जो इंतजामात करने शुरू कर देते हैं ना, जब उनको पता चले कि पीटीआई का जलसा शुरू हो जाता है, तो उन्होंने बिल्कुल पहले की तरह ही वही हर जगह पे नाकाबंदी करनी शुरू कर दी, आंसू गैस छोड़ने का इंतजाम शुरू कर दिया। जो भी वो करते हैं, होची हटकंडे अपनाना चाहते हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको ये बावर कराना चाहती हूँ कि ये अपने होचे हटकंडे से बाज आ जाए, क्योंकि जो जानिसार इमरान खान है वो हर हाल में वहां पहुंचना है और पहुंचेंगे। पहले इन्होंने डी चौक बंद किया, इस्लामाबाद को लॉक किया, फिर लेकिन तरीके इंसाफ के कारकुन वहां पहुंचे और आपकी तमाम इनकी देखें, इनकी गोलियां, इनके आंसू गैस, बुलेट प्रूफ जो इनकी गोलियां चलाते रहे, उसके बावजूद भी आवाम नहीं डरी। वाटर कैनन के अलावा जिस तरीके से इन्होंने पानी का प्रेशर, वो इंसान के अंदर से गुजर जाता है, जिस तरीके से उनका प्रेशर होता है, इन्होंने वो मारे, वो गोलियां मारी, लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद भी आवाम को रोक नहीं सके। मैं इनको ये कहना चाहती हूँ, ये जो होचे हटकंडे हैं इनसे बाज आए, आवाम ने निकलना है तो निकलना है। जी डॉक्टर मारिया साहब, आप ये बताएं, अभी ज़ेबना साहब ने दावा किया है कि 9 नवंबर को होने वाला जलसा स्वाबी में वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हुआ, तो इस पे आप कमेंट से। देखिए, वो अपने पर्सपेक्टिव से बात करिए। जहाँ तक आपने पूछा है कि मोहतरमा शहीद का जब वेलकम हुआ था और वो एक हिस्टोरिकल उनका वेलकम था, पूरे पाकिस्तान के अवाम ने उनको दिली तौर पर जो है वो वेलकम किया था, और उस जलसे की मिसाल हिस्ट्री में नहीं मिलती कि वो कितना बड़ा वालेहाना उनका इस्तकबाल था। तो उससे कंपेयर करना ये अपकमिंग जलसे को, तो ये तो एक उसकी लॉजिक ही नहीं बनती, क्योंकि मोहतरमा की शख्सियत का एक जो करिश्मा था और उनको जो भुट्टो साहब की शख्सियत का उनके ऊपर जो
इन्फ्लुएंस था वो दुनिया को पता है। और नहीं, ये डॉक्टर साहब आपकी राय है ना, उनके लिए इमरान खान उससे बड़ा करिश्मा, ये तो कोई बात है ना। देखें वो एक अलग पर्सपेक्टिव था, ये अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के एस्पेक्ट से कर रहे हैं जल्द से। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अब 1986 था, अब 2024 है और टाइम फ्रेम भी बहुत चेंज हो गया है, 40 साल ज्यादा हो गए। दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि अभी जो ये जलसा करने जा रहे हैं, सो मैं तो अब ये समझती हूँ कि जब इलेक्शन हो गए हैं, गवर्नमेंट बन गई है, तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर मुल्क की तरक्की में सबको जो है वो रोल प्ले करना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन के लोग हों, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों या और सिविलियंस हों, तो उन सबको मुल्क की तरक्की पर फोकस करना चाहिए। साहब भी कहते हैं कि एजुकेशन तो कभी प्रायोरिटी नहीं है। आप ये चाह रही हैं जो होना वो हो गया, जो लुटमार जो उन्होंने कर ली, आप उनके साथ बैठ जाएं और हुकूमत चलाएं, यही बात है ना आपकी। देखिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये टाइम जलसों का नहीं है, जलसों का टाइम जब आएगा जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होंगी सारे, जो डाका पड़ा उसका कौन जिम्मेदार? तो ये उस टाइम अपने डाके को कोई ना पूछे, फिर इलेक्शन का इंतजार करे। तो आपको क्या लगता है कि अभी ये जो टाइम है ये इलेक्शन, ये जलसे करने का और ये बार बार लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने का और इंतशार फैलाने का, आप मुझे बताएं जलसों में कितना इंतशार फैलता है? खवातीन के साथ, बच्चों के साथ बदसलूकियां होती हैं, फिर जबान दराजी होती है, गालम गलूज होती है, तो इससे तो ये तो हमारा कल्चर नहीं है, ना ही हमारे मतलब का कल्चर है, ना सोशल कल्चर है। इनको रोकने ना रोके जाने से कुछ भी नहीं होता, तो जब रोकते तो सारा इंतजार पैदा होता है। जैसे कि अब लॉजिक नहीं बनती ना कि बार बार लोगों को कंटेनर के पीछे लगाया जाए और जो है वो सुकून को जो है बर्बाद किया जाए। लोग सुकून चाहते हैं अब। और अच्छा, आप कराची से बिलोंग करती हैं जी, वहाँ इतना कोई जलसों का नहीं है। वहाँ कराची में भी जब पीटीआई को जलसा निकालना शुरू करती है ना, उनके साथ भी ये मरियम नवाज शरीफ जैसा सलूक किया था। तो ये क्या है, आप पीपल पार्टी है, आपकी हुकूमत भी है और 15 साल से आप सिंध में हुक्मरान है। देखिए कराची में तो अब जलसे इतने नहीं होते हैं। चेयरमैन साहब जब चाहते हैं और कुछ एड्रेस करना चाहते हैं तो वो इनवाइट करते हैं और वो कर सकते हैं। देखिए अब पीसफुल एनवायरनमेंट है ना, इनके जलसों में इंतशार फैलता है। कौन बढ़ाता है? अब वही इन्हीं के अपने एलिमेंट्स होते हैं। कभी ऐसे होता है कि आप चेयरमैन साहब ने अपना जलसा करना हो तो वहाँ वही हमारे जलसों में तो कोई इंतशार नहीं होता। अभी 27 दिसंबर आएगा, मोहतरमा शहीद के लिए भी गड़ी खुदा बख्श में जलसा होगा इंशाल्लाह ताला। उससे पहले भी अभी जलसा किया है चेयरमैन बिलावल ने और कल भी कराची में इवेंट हुआ है। तो हमारे जलसों में कोई किसी किस्म का इंतशार नहीं होता। ये पीटीआई के जलसों में पता नहीं क्यों इस तरह होने लगा है। जलसा करना चाहिए, ये बताना चाहिए था ना कि आप अपने जलसों में इंतजार नहीं होता और इनमें, और ये आपने ये भी कहा ये खुद ही करते हैं। देखिए हमारे जलसे में हमारे लीडर और हमारे लीडर के जो सपोर्टर्स हैं कोई भी इस तरह की स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते कि कौम की माँ बहनों बेटियों की इज्जत को वो आकर ललकारें। इनके जलसे में गंडापुर साहब की आप बात करते हैं, उन्होंने इस तरह की आपके सहाफी बिरादरी को उन्होंने ललकारा था, तो उसकी बात सिर्फ तमाम खवातीन जो है ना वो और मरियम नवाज शरीफ औरतें हैं जो उनके साथ वो औरतें देखिए वो कभी भी स्लैंग लैंग्वेज आप फरियाल तारीख की बात कर लें या मरियम नवाज की बात कर लें या मोहतरमा शहीद की, वो कभी स्लैंग लैंग्वेज ना फीमेल्स के लिए ना मेल्स के लिए वो इस्तेमाल नहीं करते। ये तो गैर जानबदार है ना। मैं इन्हीं से कहूंगी कि आप मुझे ये बताइए कि गंडापुर साहब ने जो लास्ट टाइम हमारी सहाफी बिरादरी की खवातीन को ललकारा था, उनकी इज्जत को क्या ये अजेब देता है? मैंने पाकिस्तान की तारीख में अपना कोई भी सियासी लीडर चाहे वो मेल हो या फीमेल ऐसा नहीं देखा। उनको बोलने देना, अब उनको बोलने देना। डॉक्टर मारिया की बात ये तो सही है और मैं समझता हूँ ऐसा ही होना चाहिए। देखिए एक अच्छा कल्चर तो अच्छा कल्चर ही होता है, उसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर शहीद थी, उनको असेंबली में क्या क्या कहा जाता रहा ये मगर डॉक्टर मारिया को याद नहीं रहा। उनकी नंगी तस्वीरें ऊपर से कौन फेंकता रहा? उसको छोड़, ये जिनके लाई है। अब उसको छोड़ते मैं बात करना नहीं चाहती थी, पहले शायद आप बात कर ले, मैं बात में जवाब दूंगी। जी शायद इकबाल। बाकी हमने स्टार्ट लिया था कि बेनज़ीर शहीद का जो जुलूस था और इमरान खान का जुलूस है, ये इसमें कितने को लोग ज्यादा आएंगे। दूसरा ये भी आपने कहा कि स्वाबी में करने की क्या जरूरत थी। सही आपने देखा नहीं कि ये जो आइन में तरमीम हो रही है क्यों हो रही है? सिविलियन का ट्रायल करने के लिए फौजी अदालतों में पार्टियों को जिंदा रहने के लिए अपने पल्स को और लोगों को मोबिलाइज रखना होता है। इसलिए उन्होंने कंफर्टेबल समझा। दिखाना तो ये है कि हमारा मुतालबा ये है
اس کے لیے یہ کوئی تانا نہیں کہ یہاں کیوں نہیں کر سکتے. بلال بھٹو زرداری صاحب کراچی سے چلے تھے، کسی نے روکا تو نہیں تھا، یہیں ڈیرے جما کے بیٹھے تھے. حالانکہ اس کے متعلق کچھ لوگوں کی رائے تھی، انہی کے پیپل پارٹی کے لوگوں کی. لاہور میں پیپل پارٹی کراچی میں بلاول بھٹو ہرے ہیں نا، الیکشن ہار گئے نہیں، اسلام آباد تک آئے تھے، لانگ مارچ کر کے آئے تھے یا پچھلے پی ٹی اے کے دور میں. تو آپ نے کسی جگہ انہیں روکا نہیں گیا، انہیں پڑاؤ ڈالے، تقریریں کی اور آرام چلے گئے. یہ کاش ایسا کلچر ہو کہ وہ سوابی نہ کرنا پڑے، انہیں وہ کراچی بھی کریں، کوئٹہ بھی کریں اور پنجاب میں کرو. آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں جلسہ چھوڑ کے ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی اگر نہ بتائیں کسی کو تو باہر ان کو میں دیتا ہوں کہ ابھی اتنی زیادت ہونی چاہیے کہ ان کو جھنڈا دے دیں کسی پی ٹی آئی کا تو یہ نکل کے دکھا دیں. یعنی اتنا نفرت بھی تو ہے نا، اس کا بھی تو باقاعدہ. اور رہ گیا بینظیر شاہد کی جو جلوس تھا، یہ واقعات 1986 کا سب سے بڑا جلوس تھا. لیکن اس وقت میں وفاقی حکومت میں تھا اور وہ میں نے جنیجو صاحب کی اس کابینہ کے میٹنگ کو ہم نے اٹینڈ کیا ہوا. صحیح بات ہے. ضیاء الحق صاحب اس کے خلاف تھے اور میاں صاحب بھی خلاف تھے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے. یہ جنیجو صاحب کا کرزمہ تھا، انہوں نے اجازت دی. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھ کراچی سے بھی لوگ پیدل چلے. آپ ابھی کسی کو اگر ازمانا کسی کو کچھ چاہے، دیکھو لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی. اس وقت آبادی پاکستان کی کتنی تھی؟ 18 کروڑ تھی، اب 24-25 کروڑ ہے. اگر آج ان لوگوں کے جن کا کلیم ہے کہ ہم 80% ہیں، ان کو آپ اجازت دیں وہ لانگ مارچ کرے کراچی سے، تو آپ دیکھیں کہ انہیں کروڑوں لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. آپ تو کسی کو نکلنے، کسی ماں بہن کو آپ کو شاید ڈاکٹر صاحب نہیں پتا کہ یہ جو بربریت جس کے ساتھ ہوتی ہے نا، 9 سال کی بچی کو گھسیٹ کے بعد پھینکا جاتا ہے اور وہ اس قابل مذمت ہر پارٹی کو چاہیے حکومت کے اندر رہ کے جو لوگ ایسی سچویشن کا یعنی سامنا کر چکے ہیں. اس میں بلال بھٹو زرداری صاحب خود موجود ہیں. یہاں گوار منڈی میں نصرت بھٹو کو اینٹ یہاں ڈنڈے خون ہو گئی تھی، قذافی اسٹیڈیم میں ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے نا، قذافی اسٹیڈیم قذافی میں. اب یہ بینظیر شاہد کے جو ہوا، جو ان کو پکارا گیا، جو کہا گیا، اور زرداری صاحب 19 سال جیل میں رہے. بلال کے متعلق ابھی تھوڑے دن پہلے شیخ رشید پکارنے پہ جیل تھوڑے دن پہلے شیخ رشید پکارنے پہ جب یہ نہیں تھے کٹھے مامے پھپھی کے، اس وقت رانا ثناء اللہ نے بلال کے متعلق کیا کہا تھا؟ اس نے کہا میں شرط لگاتا ہوں، کہا تھا نا. اب ایسی باتیں سن کے اگر ان کی وہ غیرت نہیں جاگتی تو پھر ان کا کمال ہے. یہ صحیح بات ہے. اب رہ گئی بات یہ کہ وہ ہم حکومت میں نہیں ہے، کبھی کہتے آپ سارے کانسٹیٹیوشن لو دے تو آپ لے کے بیٹھے ہوئے. اور پھر اس وقت صورتحال یہ ہے، آپ دیکھیں اگر کسی چور ڈاکو یا کسی ایسے آدمی کے ساتھ آپ مل جائیں، چوری نہ بھی کریں، ڈکیتی نہ بھی کریں، قتل نہ بھی کریں، سپورٹ کر رہے ہوں، تو کیا آپ اس میں شیئر ہولڈر نہیں ہیں؟ سوچنا پڑھے لکھنے والی بات ہے. رہ گئی بات کہ پوائنٹ سے کیوں نہیں. اور آخر میں ڈاکٹر ماریہ صاحب نے کہا صلح صفائی ہونی چاہیے. دیکھو ڈاکٹر ماریہ، میں جانتا ہوں پیپل پارٹی اور نون لیگ کو بھی، ان کے ایم این ایز کو میں نے کئی دفعہ چیلنج کیا. آپ مجھے بتائیے میرے محبوب جو قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، یہاں 1 سال سے زیادہ رہے، کوئی مجھے ایم این اے بتا دے اس نے شیک ہینڈ بھی کیا وہ 4-5 کے علاوہ جو ان کی کچن کیبنٹ کے بندے. عام ایم این اے نہیں، منسٹر بھی نہیں ملے. ورکر تو چیز ہی کوئی نہیں. یہاں مثلا میں کہ پروگرام میں کہتا تھا کہ یہی 2 لاکھ روپے جب میں فوٹو کھچا کے لے آؤ. آپ کی لیڈر کے متعلق یہ ہے کہ یہاں بلاول ہاؤس بنا ہوا ہے. یہاں میرے دوست ہیں کلبوں میں بڑے بڑے پرانے ماریں کھائی ہیں، ان کے والد بھی پیپل پارٹی میں، تو ہم بھی پیپل پارٹی میں دیکھتے ہیں اور اب بھی ہم اس کو اچھی پارٹی سمجھتے ہیں کہ آپ بالکل عوامی پارٹی ہے. لیکن بلاول روڈ کی دیوار کے پاس تو گزر کے دکھائے مجھے. یہ تو اوقات ہے ورکر کی. یہ جو لوگ ہم جن کو پوجتے ہیں وہ ہمارے نہیں ہیں. یہ سب پارٹی کے ورکر کو سوچنا چاہیے. میڈم آپ یعنی آپ نے کچھ دن پہلے علیمہ خان صاحب سے ملاقات کی ہے جی، اور جو بھی شاید اقبال صاحب نے گفتگو کی گزر گئے، آپ تو ان کے پاس 3 گھنٹے بیٹھ کے آئی ہیں. تو یہ کیا ماجرا ہے آپ کی پی ٹی آئی میں، نون لیگ میں اور پیپل پارٹی میں؟ عمران خان نہیں ملتا تھا، میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو. نہیں ایسی بات نہیں. شاہد صاحب ہم زمان پارا پورا پچھلا رمضان جب تھا ہم کٹھے روزہ کٹھے کھولتے زمین کے بیٹھتے تھے. اقتدار میں بھی ہمارا کٹھا آنا جانا رہتا تھا. ان میں وہ نہیں تھا، انا والا مسئلہ نہیں تھا. وہ ایک بہت نیک آدمی ہے اور شریف آدمی ہے. اور علیمہ خان صاحبہ سے علیمہ صاحبہ نے دیکھے علیمہ صاحبہ سے میری ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا زہر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے بھائی کو مار رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم پولیٹیشین نہیں ہیں، ہم تو صرف اپنے بھائی کے لیے نکلے ہیں. بالکل انہوں نے تو یہاں چیب ہوئی ہیں، یہ پارٹی کو ٹیک اوور کر رہی ہیں، نہیں بشرا کر رہی ہیں اور یہ پھلائی جا رہی ہے. اس کا بشرا بی بی کر رہی ہیں. بشرا بی بی بھی سیاست سے کوت دور ہے، وہ نہ سیاست میں آئیں گی.
ये तो ये दो पार्टियां हैं, इनके मुंह को वो लगा हुआ है बोलने का एक डरबो, वो लगा के बोली जा रहे हैं, बाकी इसमें कोई सदाकत वाली बात नहीं है। बात रह गई दोनों बहनों ने, तीनों बहनों ने जेल काटी, हालांकि वो सियासतदार नहीं थी, वो अपने भाई की डिफेंड कर रही थी, अपने भाई को, अपने भाई की आवाज उठा रहे थे। उन्होंने फरियाद ताकबर को पकड़ा था। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि ये मरियम साहबा ने, क्योंकि वजीर आला पंजाब बनी हमारा मैंडेट चोरी करके, अच्छा, अगर ये हुक्मरान बन गई थी तो इनको चाहिए था कि ये अवाम कहती हैं जीरो टॉलरेंस औरतों के लिए। मैं कहती हूँ जितनी गलत सियासत इन्होंने की है किसी ने भी नहीं की। औरतों के लिए जिस तरीके से, जहां से ये पढ़ी मैट्रिक नहीं ना की थी, इनको पता चला ये स्कूल था, इन्होंने वो स्कूल का प्रिंसिपल निकाल दिया, इन्होंने स्कूल बंद करवा दिया। ठीक, इन्होंने वो सियासत की है जो गंदी तरीन सियासत थी। और दो पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये सारी उम्र 5-5 साल बांट के आपस में पाकिस्तान को 40-45 साल से लूट लूट कर गिद्धों की तरह नोच नोच के खाते रहे। जब इमरान खान साहब आ गए तो इनके पेट में एक तकलीफ सी उठी कि हम तो चोर डाकू लूट रहे थे पाकिस्तान को गिद्धों की तरह, अब ये पाकिस्तान का मुहाफिज कहां से आ गया, अब तो ये तीसरी पार्टी आ गई है, तो ये तो हमें टिकने नहीं देगी, क्योंकि ये ना बिकेगा ना झुकेगा। अब अगर 2-1.5 साल से वो पाबंद सलासल है, जेल में है, सजाएं काट रहे हैं, 7/8/10 का जो उनको कागज दिया हुआ है, सेल दिया गया है, मुझे बताएं कि वजीर आजम वक्त का हुक्मरान रहा हो तो उसके ऊपर जितना जुल्म हो रहा है, जितना तशद्दुद हो रहा है, और ये क्या कहते हैं जी हमने 11 साल जेल काटी, कोई कहता है जी मैंने 3 साल काटी, कोई कहता है जी मैंने 4 साल काटी। जरदारी साहब ने सबसे ज्यादा काटी है। तो इन्होंने अपने अमालों की वजह से काटी थी ना, इन्होंने थोड़ा लूटा पाकिस्तान को। जब कोई केसेस की बात होती थी तो ये कभी प्लेटलेट्स किसी के खत्म हो जाते थे, उठा के ले गए इसलिए अंदर एहसान साहब घड़ी की कौन सी बात है, ये ढोंग रचाया हुआ है इन्होंने। अच्छा ठीक है, डॉक्टर मारिया जरा उनकी पार्टी के मतलब बात हो रही तो डॉक्टर साहब आपको जवाब दें इनको उनकी कोई नाराजगी नहीं, आप नुमाइंदगी कर रही हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं तो पहले आपने जो बीच में बात कर रहे थे, क्योंकि मैं एजुकेशनलिस्ट हूँ, साइंटिस्ट हूँ, रिसर्चर, तो मैं तो एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि कौम का बच्चा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी फेवर और विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और विदाउट एनी प्रोविंशियल डिस्क्रिमिनेशन, हर बच्चा पाकिस्तानी कौम का जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको तालीम की फैसिलिटीज़ फ्री में मिले या मिनिमम कॉस्ट में मिले। और ये एजुकेशन को लेके आना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग इखलाकी तौर पर भी और इक़दार के तौर पर भी जो है वो उनका लेवल अप हो और उनको शऊर जागे, बेदार हों। और हमारे पहले के जो सियासतदान, ये मारिया आपका पॉइंट आएगा, नेक्स्ट चले वो बातें जो पॉलिटिक्स की वो बात करें। एजुकेशन, सब एजुकेशन लवर है, लेकिन आपको पता है कि आपके सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा अनपढ़ बच्चों की तादाद है, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में भी 1.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चा स्कूल गोइंग नहीं है। आप लवर हैं अपनी जगह, आपकी ये डिलेमा है और कोशिश तो ये, मैं डिफरेंट एनजीओज के साथ भी एसोसिएटेड हूँ, तो हमारी कोशिश यही होती है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। बाकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से, जैसे कि मैडम खान साहब की शख्सियत की बात करती हैं, तो देखिए मेरा उनसे शख्सी इख्तलाफ तो किसी भी किस्म का नहीं है और वो एक आलमी मैयार की शख्सियत हैं, इसमें कोई सेकेंड ओपिनियन नहीं है, उनकी बहुत ह्यूज फैन फॉलोइंग है। लेकिन मैं उनको सियासतदान से ज़्यादा एक फिलैंथ्रोपिस्ट समझती हूँ, जैसे कि ईदी साहब की शख्सियत थी और उनको सियासत, अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब सियासत की अगर उन्हें बहुत एक्सपीरियंस होता तो अपने ही उनकी जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने अपने ही मिनिस्टर्स के ऊपर जो है वो एतमाद नहीं किया। और असद उमर साहब की सबके के सामने मिसाल है कि उनको 3 मरतबा 3 मिनिस्ट्रियाँ दी, एक मिनिस्ट्री दी, फिर यू टर्न लिया, उससे डिसमिस किया, फिर दूसरी मिनिस्ट्री दी, फिर तीसरी मिनिस्ट्री दी। वो ये देखते थे कि कौन करप्शन करता है, कौन नहीं करता, जो करप्शन करता हुआ पकड़ा जाता था उसको वो मिनिस्ट्री से निकाल देते थे। टीम आप ऐसी बिल्डअप करें, अपनी टीम आप ऐसी बिल्डअप करें। खान साहब को मैं पहले भी यही कहती थी कि आप एक टीम बिल्डअप करें और अपना जो है वो एजुकेटेड लोग इनवाइट करें। आप ये बताएं, बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब जो कुछ कर रहे हैं वो दुरुस्त कर रहे हैं?
छोड़े देखिए इमरान उनकी खान कोशिश है कि अवाम को ज्यादा से ज्यादा नहीं को बता देना, उन्होंने ये कोशिश करना उन्होंने आके इस दूर की रोड लहरें पे चला दिया दी मुल्क हुई हैं। को। नहीं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का specific बताएं। एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड तो है। भुट्टो साहब की काविशें, मोहतरमा शहीद की काविशें, फिर जरदारी साहब की, और बिलावल साहब बहुत स्पेसिफिकली इस पे वर्क कर रहे हैं कि वुमेन्स को एम्पावर्ड किया जाए और एजुकेट किया आपको जाए, किया skill उन्होंने दिया empower, जाए। आपकी जात को किया? देखिए मैं तो ऑलरेडी, यू कैन टॉक विद मी। मैं एजुकेटेड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनको जो है कहती हूँ बार बार कि आप जो है वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोल प्ले करें, क्योंकि मोहतरमा शहीद का ख्वाब था और वो एज ए वुमेन वो कहती थी कि मैं प्राइम मिनिस्टर भी बाद में हूँ, पहले मैं एक 26वीं तरमीम में सारा तबाह कर दिया उन्होंने कि जो उसे नाने ने आइन बनाया, आइन के हुलिया बिगाड़ दिया। ये ख्वाब की आप बात करती हैं। देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस आती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंगली अब उन्होंने पार्लियामेंट की तरफ जो इतने सारे मेंबर्स हैं उनको पावर शिफ्ट किए हैं कि कोई भी एक पर्सन पे डिसीजन जो है वो लाए ना करे और सबका एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ कोई भी एक बिग डिसीजन जब लेने की बात हो तो वो उसमें सबका म्यूचुअल कंसेंट लिया जाए, और जो कि आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट बात है और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। शायद इकबाल साहब ये जो अभी 4:30 बजे भी एक देगा मुश्ती फिर होगी, इससे पहले भी हुई कि मेम्बरान कौमी असम्बली को उठा लिया गया, सेनेट को उठा, उनकी बीवी को, बच्चों को। अब ये कह रही बड़ी हम ख़वातीन की रिस्पेक्ट करने के लिए ये बिलावल साहब बरसरे बेकार है। तो ये सारा कुछ बिलावल ने ये कहा था एक हैदराबाद में जलसे में कि अगर ये तो सीधी तरह से अमेंडमेंट होगी तो वेल एंड गुड, लेकिन हम गंदा रास्ता भी इस्तेमाल करें। और फिर उन्होंने गंदा रास्ता इस्तेमाल किया, सेनेटरों को पकड़ा, एमएनएस को पकड़ा, ये आपके सामने है। तो ये बताएं ये रुदात जैसे चली है, अब जैसे कि मोहतरमा बार बार ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी पार्टी है, बड़ा काम हो रहा है, तो आप इससे, क्योंकि आप जिन्होंने दौर से देख रहे हैं, तो ये आप बताएं हमें। नहीं, लेकिन डॉक्टर मारिया मैं कहता हूँ इज वेरी हम्बल, और उन्होंने अपनी जो पार्टी का नैरेटिव होता है, ठीक है, वो अपनी पार्टी का बताती है, ठीक। और उन्होंने बड़े प्यारे तरीके से इस बात की है, और अच्छे वर्कर के लिए यही है कि वो एंकर से मुतासर ना हो और वो ज़्यादा लेके जाना चाहता है तथा और अपनी बात करें, वेरी गुड। नहीं, बड़ी पक्की है। नहीं, दुरुस्त बात की उन्होंने जो बात पॉजिटिव थी उन्होंने बात की। बाकी क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं आजकल भी इस तरह की हाहाकार, तो वो फिर और किताब का है। बात यह है कि ये तो पीपल पार्टी वाले मानते हैं कि ये पीपल पार्टी नहीं है, ये पीपल पार्टी है ही नहीं। देखिए ना, जब उस ज़माने में आपने देखा कि 86 में जो हम रोमांस की तरफ जाते हैं कि बेनज़ीर के साथ मुल्क रोमांस कर रहा था, वजह क्या थी कि तो ज़िया-उल-हक का जुल्म था, लंबी यानी आप कह सकते हैं कि डिक्टेटरशिप थी। पीपल पार्टी के वर्कर को बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया उनके ऊपर। फिर बेनज़ीर शहीद का वालिद फांसी पर लगा था। दो चीज़ें एलिमेंट थी, वो फिर चीज़ें जब और लगाने वालों में नवाज शरीफ साथ थे। अच्छा, जब आगे आदमी आता है तो फिर हमें परफॉर्मेंस के तौर पर आगे बढ़ते हैं। जब जरदारी साहब ने यहाँ देखा कि भाई ये तो पैसे का खेल है, तो वो तो इसमें माहिर थे, उन्होंने फिर यही कहा कि यार खरीदो और बस इसी तरह। आप कल की बात देख लें, सबूत की ज़रूरत ही नहीं है। कैप्टन सफ्दर साहब ने अपनी तकरीर की कल कह दिया ये उन्होंने क्या कहा, इस इलेक्शन पर तो बहुत बड़ा सवालिया निशान उन्होंने खुद ही उठा दिया, हमने तो नहीं उठाया। उन्होंने कहा है कि ये जाके जहाँ सलाम करना है वहाँ करें, वोटों की ज़रूरत ही नहीं है। वही हम तो कई सालों से कह रहे कि ये जो अवाम है, शायद इकबाल साहब इसको कंक्लूड करें। I have only 1 minute. ओके। अब ये पाकिस्तान में जमहूरियत जो है ना, ये इसको आप अगर जमहूरियत कहते हैं तो ये डिक्टेटरशिप की बदतरीन शक्ल है, जिसके सपोर्टर्स जो है या बेनिफिशरीज हैं वो इस वक्त काम कर रहे हैं, अवाम कैसे कोई लेना देना नहीं। अब हमारा वक्त ख़त्म हो गया। दिल तो ये चाह रहा था कि इस पैनल से और भी बातें की जाएं, लेकिन तंगी दामा वक्त की कमी है। अब फैसला करना है, मेरे पैनल ने जो मेरे सवालात के जवाब किए उसका फैसला करना है आपने।